کچھ تیاریاں دیکھنے کو مل رہی ہے، خاص طور پہ جنت نظیر گلمرگ میں۔ تو اس وقت ٹھنڈ کافی زیادہ پڑ رہی ہے اور ٹھنڈ کی وجہ سے سب سے اہم چیز جو محکمہ موسمیات نے کہا ہے کہ برفباری شروع ہی ہونے والی ہے۔ ویسے تمام تر چیزیں ویسے ہی منجمد ہے، لیکن جو سفیدی برف کی آسمان سے ٹپکتی ہے اس کا جو نظارہ ہوتا ہے اس کا مزہ الگ ہی ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سیاح بڑی تعداد میں ایسے علاقوں کا رخ کرتے ہیں۔ ان میں سے جو سب سے خوبصورت مقام مانا جاتا ہے وہ ہے گلمرگ، جہاں سے سیدھا ابھی ہم براہ راست آپ سے جڑے ہوئے ہیں۔ گلمرگ میں اس وقت تمام تر چیزیں منجمد ہو چکی ہے، لیکن سب سے حیران کی بات یہ ہے کہ اتنی زیادہ مائنس میں ٹیمپریچر ہونے کے باوجود سیاح زیادہ پہنچے ہوئے ہیں، یعنی کہ جو روٹین کا ایک معمول کے حساب سے جو چیزیں چلتی ہیں اس سے کہیں زیادہ۔ یہی وجہ ہے کہ سارے ہوٹلز بک ہو چکے ہیں، ہٹس بک ہو چکے ہیں، اور جہاں بھی ان کو ٹھہرایا جاتا ہے وہ تمام تر جگہیں بک ہو چکی ہیں۔ اور اس کی سب سے بڑی وجہ ہے نیا سال۔ لوگ اپنے نئے سال کی شروعات ان خوبصورت وادیوں میں کرنا چاہتے ہیں، پہاڑوں، ریگستانوں، جنگلوں اور ان خوبصورت نظاروں میں کرنا چاہتے ہیں، وادیوں میں کرنا چاہتے ہیں۔ یہ وجہ ہے کہ سیاح بڑی تعداد میں یہاں پہنچے ہوئے ہیں۔ عادل ہم جاننے کی کوشش کریں گے آپ سے کہ اس وقت جو ہے نئے سال کے جشن کی کیا کچھ تیاریاں آپ دیکھ پا رہے ہیں؟ بالکل عامر، جس طریقے سے ہم لائیو نشریات سے پہلے دیکھ رہے تھے کہ آج ہم نے یہاں پر سیاحوں سے بھی بات چیت کرنے کی کوشش کی، اور جو یہاں کے مقامی لوگ ہیں، سروس پرووائڈر، اسٹیک ہولڈر جو اسی سیاحت کے ساتھ وابستہ ہے، کافی خوش نظر آ رہے تھے، چونکہ کچھ دن کے بعد یہاں پر نئے سال کا جشن جو ہے سیاحتی مقام گلمرگ کے اندر جو ہے منایا جائے گا۔ اس سوال سے جس طرح سے محکمہ سیاحت یا گلمرگ ڈیم اتھارٹی کی طرف سے یہاں پر جو انتظامات ہیں ان کی حتمی شکل دے دی گئی ہے، اور یہاں پر باضابطہ طور جو اکاموڈیشنز ہیں، جو یہاں کی ہم یہ کہیں گے جو اسٹے ہاؤس سے گیسٹ ہاؤس ہے، وہ باضابطہ طور آلریڈی جو ہے سولڈ آؤٹ ہو چکے 31 دسمبر تک، جس طرح سے محکمہ سیاحت کا کہنا ہے۔ وہی جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں لگاتار پچھلے کئی دنوں سے گلمرگ کے ساتھ ساتھ اگر ہم پہلگام، سونمرگ، دودھپتری علاقے کی بات کریں گے، جو بھی یہاں پر سیاحتی مقامات ہیں، ٹورسٹ ڈیسٹینیشنز ہے، وہ آلریڈی جو ہے اس میں کافی تعداد سیاحوں کی یہاں پر موجود ہے۔ کہیں نہ کہیں وہ یہاں پر اس ویدر کا یہاں پر آنند لیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، لیکن جس طرح سے محکمہ سیاحت کا کہنا ہے کہ گلمرگ میں جو اس بار جو ہے ایک جو فنکشن نئے سال پر ہونی جا رہی ہے، اس حوالے سے پہلے ہی یہاں پر جو بکنگ سے وہ آلریڈی گلمرگ جو ہے پوری سولڈ آؤٹ ہو چکی ہے، چاہے ہم ہوٹلز کی بات کریں گے، چاہے ہم جو یہاں پر نجی اکاموڈیشنز ہے، گیسٹ ہاؤسز ہے، یا یہاں پر جو بھی اسٹیئنگ جو اکاموڈیشنز ہے وہ آلریڈی جو ہے سولڈ آؤٹ ہو چکی ہے 31 دسمبر تک۔ یہ محکمہ سیاحت کا کہنا ہے۔ لگاتار پچھلے ہم کئی دنوں سے دیکھ رہے ہیں کہ وادی کشمیر کے سیاحتی مقامات کے ساتھ ساتھ گلمرگ میں بھی جو ہے قریباً 5000 کے قریب یہاں پر ٹورسٹ جو ہے ہر دن گلمرگ کا جو ہے سفر کرتے ہیں، گلمرگ کی ان خوبصورتیوں، ان وادیوں کا لطف لیتے ہیں، یہ محکمہ ٹورزم کا کہنا ہے۔ جس طرح سے ہم لگاتار دیکھ رہے ہیں کہ اگرچہ موسم میں لگاتار یہاں پر دن میں کھلی دھوپ رہتی ہے، لیکن رات کے ٹیمپریچر میں لگاتار کمی آئی ہے، کیونکہ اگرچہ ہم گلمرگ کی بات کریں گے اس وقت گلمرگ میں اتنی برف باری جو ہے موجود نہیں ہے جسے ایکسپیکٹ کیا جا سکتا تھا کہ جو پچھلے سال ہم نے دیکھا تھا کہ ارلی نومبر میں سنو فال ہوا تھا، تو یہاں پر ونٹر سپورٹس کو بھی جو ہے آلریڈی جو ہے ہری جھنڈی دکھا دی، لیکن اس بار ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس بار اتنی برف گلمرگ کے اندر موجود نہیں ہے۔ لیکن جس طرح سے ہم نے دیکھا کہ کرسمس پر بھی کافی تعداد میں پریٹک گلمرگ آئے تھے، لیکن اب یہ لگ رہا ہے کہ جو نئے سال کا فنکشن گلمرگ میں ہونے جا رہا ہے اس حوالے سے بھی آلریڈی بکنگ جو ہے ہو چکی ہے، اور گلمرگ جو آلریڈی سولڈ آؤٹ ہو چکی ہے۔ لیکن اس کے دوسرے سائڈ سے اگر ہم دیکھیں گے جو یہاں کے مقامی لوگ ہیں، جو سیاحت سے وابستہ لوگ ہیں، کافی خوش نظر آ رہے تھے، جس طریقے سے ان کا کہنا ہے کہ پہلی بار جو ہے انہوں نے اس طرح کا سیاحت کا سیزن جو ہے گلمرگ کے اندر دیکھا ہے۔ اگر ہم پچھلے 70 دہائیوں کی بات کریں گے، پچھلے کئی سالوں کی بات کریں گے، یا لگاتار پچھلے 2-3 سالوں کی بات کریں گے، جو ٹورزم انفراسٹرکچر کو ڈیولپ کیا گیا ہے اور بھی ڈیسٹینیشنز کو سیاحتی نقشے پر لایا گیا ہے، ونٹر جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ولیج ٹورزم کو جو ہے بڑھاوا دیا گیا ہے سرکار کی طرف سے، یا ہم یہ کہیں گے جو بارڈر ٹورزم ہے اسے ترجیح دی جا رہی ہے، تو اس کے جو ہم یہ دیکھتے ہیں اس کا جو پازیٹیو امپیکٹ جو سیدھے یہاں کے لوگوں کو نظر آ رہا ہے، کیونکہ جو سیاحت سے وابستہ لوگ ہیں کہیں نہ کہیں وہ اپنی روزی روٹی جو اچھی خاصی کما رہے ہیں۔ رہی بات اگر ہم نئے سال کے حوالے سے بات کریں، چونکہ گلمرگ میں جو ہے ایک بڑی فنکشن گلمرگ کلب میں ہونے جا رہے ہیں، جہاں پر وادی بار کے ساتھ ساتھ جو باہر سے بھی کچھ آرٹسٹ کو بلایا جا رہا ہے، جس سے ہم نے دیکھا کہ 24 تاریخ سے ہی گلمرگ کے اندر جو ہے محکمہ سیاحت کی طرف سے ونٹر کارنیول جو شروع کر دیا گیا ہے،
इस हवाले से हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ तरह के तकारीब और मुख्तलिफ तरह के प्रोग्राम इस विंटर कार्निवल में हमने देखा। हमने क्रिसमस पर भी देखा, यहाँ पर जो ATV रेस का आयोजन किया गया, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि म्यूजिक डांस का जो है वो इवेंट भी रखा गया था। तो जिससे 24 को विंटर कार्निवल शुरू हो गया है, वो 31 दिसंबर को जो है इख्तिताम पजीर हो गई। इसमें हम देखेंगे कि इसमें मुख्तलिफ तरह की एक्टिविटीज जो है गुलमर्ग के अंदर देखने को मिलेगी। और जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि जो इंतजाम है, अगर हम गुलमर्ग की बात करें, यहाँ पर हीटिंग अरेंजमेंट्स की बात करें, इलेक्ट्रिसिटी की बात करेंगे, वाटर सप्लाई की बात करेंगे, रोड कनेक्टिविटी के हवाले से बात करेंगे, या जिस तरीके से एकोमोडेशन के हवाले से बात करेंगे, सरकार इस वक्त जो है बाज़ाब्ते तौर मशीनरी और मैन को अलर्ट रखे हुए गुलमर्ग के अंदर। अब सिर्फ बात इसी चीज की, अब सिर्फ इंतजार इसी चीज का है कि कब गुलमर्ग के अंदर जो है बर्फबारी हो, ताकि जो नया साल आने वाला है, जो टूरिज्म गुलमर्ग में अंदर, इसमें जो है एक नई जान जो इस बर्फबारी से देखने को मिलेगी। जिस तरह से महकमा सयाहत का कहना है कि फिलहाल जो है इसमें कोई यहाँ पर भारी बर्फबारी की पेशगोई जो है 2 जनवरी तक नहीं होगी वादी कश्मीर के अंदर। तो अब हम देख रहे हैं कि गुलमर्ग में इसके छोड़कर भी हम देख रहे हैं कि पहली बार इतनी सयाहों का तांता जो है गुलमर्ग के अंदर जो है वो रखा गया है। कुछ दिन पहले नए साल का जो जश्न होगा, जश्न में जो प्रोग्राम्स होंगे वो कौन कौन सी जगह पे मुनक्किद कराए जाएंगे और कौन कौन से प्रोग्राम होंगे, टाइमिंग क्या होगी उसकी, और उसमें सयाह किस तरीके से पार्टिसिपेट कर सकते हैं? बिल्कुल आमिर, जिस तरीके से हम जिस तरह अपने न्यू ईयर सेलिब्रेशन की बात की, क्योंकि गुलमर्ग क्लब में जो एक प्रोग्राम रखा गया है, वही अगर हम बात करेंगे जो गुलमर्ग का एंट्री पॉइंट है, वहाँ पर एक म्यूजिक डांस का प्रोग्राम रखा गया है। वही अगर हम केबल कार की बात करेंगे, वहाँ पर एक प्रोग्राम जो है वो रखा गया है। वही कोंगडोरी के इलाके की बात करें, वहाँ पर भी एक प्रोग्राम जो है उसका आयोजन किया जाएगा, जहाँ पर बाज़ाब्ते तौर जो है एक स्लेजिंग और स्नो बाइक रेस का आयोजन जो है महकमे सयाहत की तरफ से किया जाएगा। वही अगर हम गुलमर्ग बाउल की बात करें, वहाँ पर एक और प्रोग्राम जो है म्यूजिक डांस का रखा गया है, जो बाज़ाब्ते तौर शाम के 6 बजे जो है शुरू हो जाएगा और कल सुबह तक वो चलेगा। इस हवाले से गुलमर्ग के जो गुलमर्ग का क्लब है, वहाँ पर भी एक फंक्शन जो है रखी जाएगी, जहाँ पर बाज़ाब्ते तौर मेहमान खुसूसी वहाँ पर मौजूद रहेंगे। अभी इस बात की पुष्टि नहीं की गई है कि कौन जो है मेहमान खुसूसी नए साल पर गुलमर्ग के अंदर होगा। इस हवाले से जो है उसी दिन जो है पता चल जाएगा। लेकिन इस हवाले से मैं ये कह दूं, जो इंतजाम है गुलमर्ग के अंदर वो ऑलरेडी जो है कंप्लीट हो चुके हैं। चाहे हम अकोमोडेशन की बात करेंगे, बुनियादी सहूलत के हवाले से बात करेंगे, क्योंकि जिस तरीके से कुछ दिन पहले डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से यहाँ पर जो है गुलमर्ग जो गेटवे ऑफ गुलमर्ग जिसे हम टंगमर्ग कहते हैं, यहाँ पर चूंकि ट्रैफिक जामिंग का सिलसिला लगातार पिछले कई दिनों से हम आपसे समझने की कोशिश करेंगे कि आमतौर पर जो सयाह गुलमर्ग या दूसरी जगह पे वादी में जाते हैं, उन्हें तमाम चीजों के साथ साथ खाने पीने का भी शौक होता है। ऐसे में न्यू ईयर उससे पहले या उसके बाद जो सयाहों की भीड़ होती है, उन्हें कौन कौन सी जगह पे कहाँ पे कश्मीर की रिवायती खाने मिल सकते हैं, और इसके हिसाब से मार्केट का क्या नज़ारा होता है खाने पीने के लिए? देखिए आमिर, जिस तरीके से आपने खाने पीने की बात की, क्योंकि जब वादी कश्मीर की बात है, क्योंकि कश्मीरी वाजवान जो है सबसे ज्यादा जिसे लाइक किया जाता है, वही इस हवाले से जिस तरीके से हम ये कहेंगे कि जो गुलमर्ग का गेट है, जिसे हम टंगमर्ग कहते हैं, यहाँ से ही एंट्री जो है टूरिस्ट की होती है जो गुलमर्ग की ओर जा रहे हैं। क्योंकि टंगमर्ग से लेकर गुलमर्ग तक जो रोड है 13 किलोमीटर का रोड है। कुछ अकोमोडेशन टंगमर्ग के अंदर भी है, जहाँ पर टूरिस्ट जो है पहले सुबह जब आते हैं यहाँ पर नाश्ता वाश्ता करके जो है गुलमर्ग की ओर जाते हैं। तो अगर हम ये कहेंगे टंगमर्ग में भी कुछ यहाँ पर जो होटल्स है जो जिनमें बाज़ाब्ते तौर यहाँ पर जो है जो कश्मीर का खान पान है वो अवेलेबल रखा जाएगा। वही इस हवाले से जो जब गुलमर्ग सयाह पहुंचेंगे, वहाँ पर भी जो है जिस तरह से हमने ये कहा कि गुलमर्ग के क्लब में जो फंक्शन हुई है, वहाँ पर भी कुछ स्टॉल जो है लगाए जाएंगे, जिसमें बाज़ाब्ते तौर जो भी चाहे हम कश्मीरी वाजवान की बात करेंगे, यहाँ पर जो देसी खाना है वो या देसी जो यहाँ पर इस्तेमाल किए जाने वाली चीज़ें वो बाज़ाब्ते तौर वहाँ पर जो है रहेंगी। जो सयाह पसंद करना चाहेगा वो बाज़ाब्ते तौर इन्हें वहाँ गुलमर्ग क्लब में जो है मिलेगी। चूँकि सबसे बड़ी फंक्शन जो है गुलमर्ग क्लब में मुनक्किद होगी, जहाँ पर इस तरीके की सारी आइटम जो है वो सयाहों के लिए अवेलेबल रखी जाएगी। जिस तरह से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से या हम ये कहेंगे गुलमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी की तरफ से, म्युनिसिपल कमेटी टंगमर्ग गुलमर्ग की तरफ से, या जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग विंग है, चूंकि इन्होंने ऑलरेडी अपनी जो मशीनरीज मैन है वो अलर्ट रखी है, ताकि अगर आने वाले दिनों में यहाँ पर ज्यादा बर्फबारी होती है, यहाँ पर रोड ब्लॉक होता है या ज्यादा बर्फबारी का खतरा बनता है, तो इस हवाले से यहाँ पर पहले ही जो इंतजाम है वो उनकी हतमी शक्ल दे दी गई है। तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन या हम पूरे महकमे सयाहत की तरफ से, क्योंकि जो डायरेक्टर टूरिज्म कश्मीर है उन्होंने खुद कल परसों जो है यहाँ पर मुआयना किया गुलमर्ग के अंदर, क्योंकि वो MD केबल कार कॉर्पोरेशन गंडोला के MD भी है, उन्होंने बाज़ाब्ते तौर इस पूरे गुलमर्ग बाउल को जो मुआयना किया, यहाँ पर देखा कि किस तरह की फैसिलिटीज यहाँ पर सयाहों को अवेलेबल रहनी चाहिए। तो जिस तरह से कुछ दिन पहले जम्मू में एक तकरीब मुनक्किद हुई, जहाँ पर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने यह भी दोहराया कि जम्मू कश्मीर के अंदर अगर हम पिछले 2 सालों की बात करेंगे,
4 करोड़ से ज्यादा सयाहों ने जम्मू कश्मीर का रुख किया है। और ये अगर हम ये कहें कि 70 की दहाई में पहली बार जो है 4 करोड़ से ज्यादा टूरिस्टों ने पिछले 2 सालों में वादी कश्मीर का रुख किया है। तो ये जाहिर सी बात है, जिस तरह से यहाँ पर मरकजी सरकार, यूनियन टेरिटरी सरकार की तरफ से आए बड़ा आंकड़ा है आदिल, और यकीनन ये रिकॉर्ड ब्रेक आंकड़ा है कि 2 करोड़ से ज्यादा लोग यहाँ आ चुके हैं, और आइंदा भी जो आंकड़े रखे गए वो बहुत ज्यादा है और उम्मीद की जा सकती है आएंगे। आपसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि इतने बड़े पैमाने पर सयाह आ चुके हैं, आ रहे हैं और आने वाले हैं, नए साल की शुरुआत होने वाली है और बहुत ज्यादा टाइम भी नहीं बचा है। ऐसे में रोड सेफ्टी को लेकर के, भीड़ भाड़ से बचाव को लेकर के और ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की तरफ से क्या कुछ ऐसा रोड सेफ्टी मेजरमेंट के लिए कदम उठाया गया है या एडवाइजरी जारी की गई है ट्रैफिक डिपार्टमेंट की जानिब से? बिल्कुल आमिर, जिस तरीके से मैंने बताया कि अगर हम गुलमर्ग से लेकर टंगमर्ग तक जो रोड है, मैंने ये पहले ही कहा कि अगर यहाँ पर बर्फबारी होती है, ज्यादा ट्रैफिक जाम का सिलसिला जो है बर्फबारी में देखने को मिलता है। तो इस हवाले से यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने पहले ही कुछ यहाँ पर कंट्रोल रूम्स भी कायम किए हैं टंगमर्ग के अंदर, जहाँ पर बाज़ाब्ता तौर कुछ मुलाजिमों को रखा गया है। उनके नंबरात जो है वो बाज़ाब्ता तौर सोशल मीडिया पर शेयर किए गए ताकि किसी भी इम्कानी गड़बड़ को निपटने के लिए यह कंट्रोल रूम काम आए। और अगर कहीं यहाँ पर मकामी लोग या टूरिस्ट जो गुलमर्ग की ओर आ रहे हैं किसी मुसीबत में फंस जाते हैं तो वो बाज़ाब्ता तौर इन कंट्रोल रूम्स पर जो है राब्ता कायम कर सकते हैं। वही उसके छोड़ के यहाँ पर कुछ स्पेशल मोबाइल मजिस्ट्रेट जो है वो बाज़ाब्ता तौर तैनात किए गए हैं। चाहे हम गुलमर्ग की बात करेंगे या नारबल से लेकर गुलमर्ग तक जो नेशनल हाईवे, इस पर बाज़ाब्ता तौर जो है ट्रैफिक डिपार्टमेंट की तरफ से, जम्मू कश्मीर टूरिज्म पुलिस की तरफ से या जो जम्मू कश्मीर का पुलिस है वो बाज़ाब्ता तौर जो है दिन भर यहाँ पर गाड़ियों में बाज़ाब्ता तौर सायरन के जरिए या हम ये कहेंगे बाज़ाब्ता तौर वो लाउड स्पीकर लगाकर जो है बाज़ाब्ता तौर इस पूरे रोड का मुआयना करते हैं ताकि ज्यादा ट्रैफिक जामिंग का सिलसिला जो है इस नेशनल हाईवे पर देखने को ना मिले। वही जब भी यहाँ पर कोई मूवमेंट्स रहते हैं, चाहे हम गुलमर्ग से लेकर नारबल से लेकर गुलमर्ग तक बात करेंगे, तो बाज़ाब्ता तौर कुछ मजिस्ट्रेट्स को यहाँ पर तैनात किया गया है जो बाज़ाब्ता तौर ट्रैफिक चलाने में जो एक अहम रोल अदा करेंगे। जो बाज़ाब्ता तौर 31 दिसंबर तक तो यहाँ पर जो है कुछ स्पेशल कुछ अरेंजमेंट जो है इस हवाले से, ट्रैफिक के हवाले से यहाँ पर किए गए ताकि ज्यादा ट्रैफिक जामिंग का सिलसिला जो है गुलमर्ग के अंदर देखने को ना मिलेगा। तो इस हवाले से हम ये कहेंगे कि जिस तरह से मैंने कहा कि 2 करोड़ से ज्यादा टूरिस्ट जो है पिछले नवंबर तक यहाँ पर जिन्होंने वादी कश्मीर का रुख किया, तो इस हवाले से यहाँ पर महकमे सयाहत ने ऑलरेडी जो है कुछ ऐसे अरेंजमेंट्स किए हैं ताकि जो सयाह गुलमर्ग आएंगे न सिर्फ वो गुलमर्ग में ही रहेंगे, क्योंकि कुछ गेस्ट हाउस की रजिस्ट्रेशन जो ऑलरेडी यहाँ के कुछ यहाँ के जो इको टूरिज्म को ज्यादा फरोग मिला है, जो विलेज टूरिज्म वहाँ पर किया गया है, तो वो उनमें भी जो बाज़ार टूरिस्ट अब बुकिंग कर रहे हैं वो वहाँ भी रह रहे हैं ताकि किसी भी जो यहाँ पर सयाह आएंगे इसे किसी तकलीफ का सामना जो है गुलमर्ग के अंदर या टंगमर्ग के अंदर देखने को ना मिले। इस हवाले से बाज़ाब्ता यहाँ पर जो कुछ मेजर जो है वो ऑलरेडी लिए गए, तैयारियां मुकम्मल है, गेस्ट मेहमान सयाह आ चुके हैं, स्टेज सजा हुआ है, बस इवेंट्स का इंतजार है कब 1 तारीख की वो शाम होगी, 31 दिसंबर की वो शाम होगी और उसके बाद जश्न का समा होगा, प्रोग्राम मुनक़िद होंगे और एक सिलसिला निकलेगा, नए साल की शुरुआत होगी। बहुत शुक्रिया आदिल हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम मालूमात के लिए।